The name of the chapter was The Era of One Party Dominance. In that chapter, we had already discussed few things, and these few things were, you all know that we had undefined boundaries of the country when we attained our independence. We have good number of masses of illiterate people. Indian government have to prepare electoral rolls, and it was the largest democracy of the world. So it was very difficult to conduct free and fair election in the country when the people were unaware of their rights and lots of people were uneducated. Before India's experiment, democracy was considered the task which can be performed only by the educated and developed countries of Western Europe. It was being challenged by so many people that India will not able to maintain democratic system. But first election of India's democratic system have proved everybody wrong, and India was able to successfully converted itself into a democratic country. There were about 4 candidates on each seat, and elections were conducted in free and fair manner. Although Congress became the ruling party, but opposition was also have accepted the election results. Communist Party of India stood itself as the opposition party in 1957. इंडियन इलेक्शन सिस्टम में बहुत सारे बदलाव होते रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा बदलाव हुए हैं वोटिंग की व्यवस्था में। सबसे पहले बैलेट बॉक्स होते थे। इस बैलेट बॉक्स के अंदर और बाहर कैंडिडेट का नेम लिखा जाता था, उसका इलेक्टोरल सिंबल लिखा जाता था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इलेक्टर्स वर अनएजुकेटेड. आफ्टर 2 elections it was changed, and Indian government had introduced ballot paper. और बैलेट पेपर पर भी सभी उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह होते थे, जिसमें जो वोटर था उसको अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे मोहर लगाना होता था. और जो प्रेजेंट सिस्टम है कंट्री में वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, विच यू ऑल आर फेमिलियर विद. इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी सभी इलेक्टर्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके नेम और उनके इलेक्शन सिंबल्स होते हैं, और जो इलेक्टर है वो अपने पसंद के पर्सन के आगे या उसके चुनाव चिन्ह के आगे बटन प्रेस करता है. तो दीज वर द चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग इन इंडिया. लेकिन इसके साथ बार बार एक क्वेश्चन उठता है, what were the reasons of the Congress dominance in first 3 general elections? You all know that कांग्रेस ने बहुत लंबे टाइम तक इंडिया पे रूल किया है, लेकिन पहले 3 आम चुनाव सिर्फ कांग्रेस ने ही जीते. As you already know, कांग्रेस had the inheritance of national movement, यानी लोगों को जिस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पता था वो सिर्फ कांग्रेस थी. इसकी ऑर्गेनाइजेशन पूरे कंट्री में थी. इसमें क्रिस्मेटिक लीडर थे नेहरू, और नेहरू जो थे ही वॉज एबल टू मेंटेन इट्स वोट्स. So in this system, India's electoral system was also able to help the Congress to maintain its victory. You all know that we had first past the post system, and in this first past the post system, India's electoral system played a very important role to ensure the victory of Congress. But during that time also, the Communist Party in Kerala was able to maintain its government in 1957 in the assembly election, where the Communist Party won the largest number of seats to Kerala's legislature.
It won 60 seats out of 125 and had supported by 5 independent candidates. The governor invited EMS Namboodiripad, the leader of Communist Party, to form the ministry. And it was the first time in the world that Communist Party's government had came to power through the democratic election. और बिल्कुल इसके साथ साथ this Communist Party was able to get 15 seats in the Lok Sabha, and it was able to play the role of the opposition party in India. But on losing power in the state, the Congress Party began a liberation struggle against the elected government. The CPI had come to power on the promise of carrying out the radical and progressive policy measure. तो इस तरह पहली बार किसी स्टेट में कांग्रेस हारी, लेकिन ज़्यादातर सभी स्टेट्स में कांग्रेस वॉज एबल टू मेक द गवर्नमेंट. हमें देखना है व्हाट वाज द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, कि कांग्रेस जो जीत रही थी उसके डोमिनेंस की प्रकृति क्या थी, कैसे जीतती थी, ऐसी क्या बात थी दैट कांग्रेस वॉज एबल टू मेक गवर्नमेंट ईयर आफ्टर ईयर. सो वी हैव टू स्टडी द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस. तो जैसे बच्चों मैंने आपको बताया कि भारत में स्वतंत्र चुनाव हो रहे थे, लेकिन इन स्वतंत्र चुनावों में कांग्रेस ही बार बार सरकार बना रही थी. तो हम देखेंगे कि ऐसी क्या खास बात थी कि कांग्रेस ही बार बार सरकार बना रही थी. इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी. इफ़ यू लुक अराउंड द वर्ल्ड वी फाइंड मैनी ऑफ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. तो भारत दुनिया का ऐसा पहला देश नहीं था जहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना रही थी. ऐसा पहले दूसरी जगह भी हो रहा था. बट देयर इज़ अ क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन दीज एंड इंडियाज़ एक्सपीरियंस. Actually, in rest of the cases, the dominance of one party was ensured by compromising democracy. अगर आप भारत की बात करें तो हमारा जो एक पार्टी का प्रभुत्व था वो दूसरों से अलग था, और उन सब देशों में लोकतंत्र आ रहा था, लेकिन उस लोकतंत्र को कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा था डेमोक्रेसी से. फॉर एग्जाम्पल, some countries like China, Cuba, Syria, the constitution permits only a single party to rule the country. तो कुछ देश तो ऐसे थे ही जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी को रूल करना अलाउड होता था. But some countries like Myanmar, Belarus, Egypt, Eritrea are effectively one-party states due to the legal and military measures. Until a few years ago, Mexico, South Korea, Taiwan were also effectively one-party dominant states. What distinguished the dominance of Congress in India from all these cases was it happened under democratic constitution. तो अगर आप भारत की बात करें तो भारत का जो एक दलीय प्रभुत्व था वो एक पार्टी होने के नाते नहीं था. हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, हर सीट पर कम से कम 4 कैंडिडेट खड़े थे. बट इंडियाज़ डेमोक्रेटिक सेटअप वॉज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर फेयर इलेक्शंस. Many parties contested elections in condition of free and fair, and yet the Congress managed to win the election after election. This was similar to the dominance of African National Congress has enjoyed in South Africa and end of apartheid. तो भारत का जो एक दलीय प्रभुत्व था वो बिल्कुल इस तरह का था जैसे साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का था. The roots of this extraordinary success of the Congress Party go back to the legacy of freedom struggle. तो मैं आपको वो फैक्टर्स बता रही हूँ, वो रीजंस बता रही हूँ जिसकी वजह से कांग्रेस इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन जीत रही थी. So as we have already taught you the reasons of Congress dominance, exactly same reasons थे. कांग्रेस के पास राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत थी. It was seen as inheritor of national movement. दूसरी बड़ी बात, many leaders who were in the forefront of that struggle were now contesting election at
एज अ कांग्रेस कैंडिडेट्स। तो वो सब चेहरे जिनसे बहुत सारे लोग परिचित थे ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, अब वो कांग्रेस के बैनर के नीचे इलेक्शन लड़ रहे थे। तीसरी बड़ी बात, द कांग्रेस ऑलरेडी वॉज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी and by the time the other parties could even think of strategy, the Congress had already started its campaign। और तीसरा बड़ा फैक्टर क्या था कि कांग्रेस एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। जब तक दूसरे लोग, दूसरी पार्टियां अपनी नीतियां सोचते, स्ट्रैटेजी सोचते, द कांग्रेस जो थी वो अपनी इलेक्शन कैंपेन, चुनाव प्रचार शुरू करती थी। In fact, many parties were formed only around independence or after that. Thus, the Congress had first of the blocks advantage। और बाकी जो राजनीतिक दल थे वो आज़ादी के आसपास ही बने थे। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी, तो इसको हमेशा फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स का बेनिफिट मिला। By the time of independence, the party had not only spread across the length and breadth of the country, as we had seen in the maps, but also had an organizational network down to the local level। और कांग्रेस इकलौती पॉलिटिकल पार्टी थी जो लोकल लेवल तक अपनी पहुंच बना चुकी थी, यानी जड़ों तक, देश की जड़ों तक, गांवों तक लोग कांग्रेस की रीच में थे। Most importantly, as the Congress was till recently a national movement, its nature was all inclusive। और कांग्रेस को जिस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या था कि ड्यू टू द नेशनल मूवमेंट, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, तो इसका एक जो प्रकृति थी वो क्या थी, ऑल इंक्लूसिव, यानी सबको साथ लेकर चलना। सो ऑल दीज फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। और यही रीजंस थे कि कांग्रेस बार बार हर इलेक्शन जीतती गई। जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी, दे वर नॉट एज स्ट्रॉन्ग, एज ऑर्गेनाइज्ड, एज केपेबल एज द कांग्रेस वॉज। तो इसको हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन लड़ने का फ़ायदा मिला। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो अपने बुक में पॉइंट्स मार्क करिए जिस तरह से मैंने आपको पीपीटी में शो करे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। आई एम गोइंग टू बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज द कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन। बुक खोल के उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। हाउ कांग्रेस वॉज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन। किस प्रकार कांग्रेस एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन थी। दो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगी इस टॉपिक में, सोशल किस तरह से था और आइडियोलॉजिकल कोलिजन कैसे था। तो पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। एक्चुअली ऑल यू नो दैट सोशल क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी होती है जहाँ पर डिफरेंट क्लासेस के लोग इकट्ठे रहते हों, डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ठीक है, लेबर, पीजेंट्स, सब रहते हो। तो जो कांग्रेस थी, इट बिकेम अ सोशल पार्टी बिकॉज द पीपल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ फाउंड स्पेस इन द कांग्रेस। हर तरह के लोगों के लिए कांग्रेस के पास स्थान था। दूसरी बात आती है हाउ इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल कोलिजन। वैचारिक गठबंधन भी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास कितने तरह की विचारधाराओं के लोग होते हैं। वी हैव राइटिस्ट्स जो इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर करते हैं, वी हैव लेफ्टिस्ट जो लेबर को फेवर करते हैं, वी हैव कंजर्वेटिव जो परंपरावादी होते हैं, वी हैव रेडिकल जो इमीडिएट चेंज चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लोग होते हैं। कुछ परंपरावादी होते हैं, कुछ रेडिकल्स होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं जो दोनों तरह के लोगों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स कांग्रेस में इन सब लोगों के लिए स्थान था। सो एट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन history of how Congress evolved for its origin in 1985 as a pressure group for newly educated professional and commercial classes to a mass movement in the 20th century। मैंने बताया था आपको
कि कांग्रेस शुरुआत में एक छोटा सा प्रेशर ग्रुप की तरह था जो रूलिंग पार्टी को यानी ब्रिटिशर्स को इन्फ्लुएंस करती थी फॉर टेकिंग डिसीजंस इन द फेवर ऑफ इंडिया, और इसमें सिर्फ प्रोफेशनल्स थे, एजुकेटेड थे, इसी तरह के लोग थे इन द 20th century. This led to the base of its eventual transformation into a mass political party and its subsequent domination in the political system. लेकिन when Mahatma Gandhi have joined it, this party become a mass political party, ऐसी पार्टी जिसमें हर समाज के हर समूह का व्यक्ति था. Thus the Congress began as a party dominant by the English speakers. शुरू में सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे, अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन एलीट. बट विद एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट लॉन्च इट्स सोशल बेस्ड वाइडेंड. और जैसे जैसे ये इसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लड़े, आप सबको पता ही है, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस सब कांग्रेस के बैनर के नीचे लड़े गए. तो धीरे धीरे इसका जो दायरा था, जो सोशल बेस था, वो बढ़ता गया. It brought together the diverse groups whose interests were often contradictory. और धीरे धीरे बेशक विपरीत विचारधाराओं के लोग थे, they got space in the Congress. For example, peasants and industrialists, urban dwellers and villagers, workers and owners, middle class, upper class, lower caste, all found space in the Congress. तो धीरे धीरे चाहे वो अपर थे, मिडल थे, गरीब थे, अमीर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेबर थे, मजदूर थे, पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे, they all got space in the Congress. Gradually, its leadership also expanded beyond the upper caste and upper class professionals to agriculture-based leaders with the rural orientation. और इसमें आपको पता ही है, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग भी थे. तो धीरे धीरे जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो अपर कास्ट के अलावा गांव के लोगों यानी मिडिल क्लास एंड अनप्रोफेशनल एग्रीकल्चरल ऐसे लोगों के हाथों में भी आ गई. By the time of independence, the Congress was transformed into a rainbow-like social structure. और जब भारत आज़ाद हो रहा था तो जैसे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, इसी तरह कांग्रेस में भी हर स्ट्रक्चर के लोग थे, एंड विच ब्रॉडली प्रेजेंटिंग इंडियाज डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लास एंड कास्ट. कांग्रेस को देखकर ही आप समझ सकते थे कि देयर वर लॉट्स ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स इन द कंट्री. देयर वर डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेजेस, वेरियस इंटरेस्ट पीपल फाउंड स्पेस इन द कांग्रेस. और कांग्रेस की पृष्ठभूमि में सबके लिए पूरा स्थान था. Many of these groups merged their identity within the Congress. Very often, they did not continue to exist within the Congress as a group and individuals holding different beliefs. और बहुत समय तक तो जो ग्रुप्स थे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी, छोटे छोटे तबके थे, वो एज इट इज़ अपनी आइडेंटिटी के साथ ही कांग्रेस में शामिल कर लिए गए. In this sense, Congress was an ideological collision as well. क्यों थी वैचारिक collision? Because it accommodated the revolutionary and pacifist. मैंने अभी बताया कांग्रेस में कौन थे, रेवोल्यूशनरी भी थे और पैसिफिस्ट शांति प्रिय लोग भी थे. There were conservatives and radicals. कंजर्वेटिव कौन होते हैं? जो परंपरावादी होते हैं. रेडिकल्स जो इमीडिएट चेंज चाहते हैं. There were extremists and moderates. There were rightists and leftists. Rightist कौन होते हैं? जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं. लेफ्टिस्ट कौन? जो लेबर्स की को हेल्प करते हैं. And all shades of culture. And Congress become a platform for numerous groups. और धीरे धीरे इन सभी समूहों के लिए कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म बन गई जहाँ पर द पीपल ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट एंड इवन द पॉलिटिकल पार्टी टू टेक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट. यानी विभिन्न छोटे छोटे राजनीतिक दलों ने अपनी आइडेंटिटी को मर्ज करते हुए कांग्रेस को बड़ा बना लिया फॉर द कॉज ऑफ नेशनल मूवमेंट.
In pre-independence days, many organizations and parties with their own constitution and organizational structure were allowed to exist in the Congress. और आज़ादी से पहले कांग्रेस में विभिन्न राजनीतिक दलों को अपने आप को शामिल करना, अपनी आइडेंटिटी के साथ शामिल करना अलाउड था। जैसे कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि कांग्रेस में अगर देखा जाए तो उस वक्त कांग्रेस में सोशलिस्ट पार्टी भी थी, वो भी कांग्रेस का पार्ट थी, आज़ादी से पहले की बात है, ठीक है। एंड डिफरेंट अदर छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज फाउंड स्पेस इन द कांग्रेस एंड कांग्रेस बिकम अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन। कांग्रेस एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन बन चुकी थी। So this is the topic which I want to explain to you.